Okay, so earlier we have discussed about communication. What is communication? We have discussed about different definitions of communication, and how communication is a essential part for our life. These things we have already discussed. Okay, today we are going to discuss about essential things for good communication. Good communication or effective communication. What is effective communication? Communication, we have discussed that what is the communication. Communication is a exchange of information. Okay, exchange of information from one person to another. This is communication. But what is effective communication? Effective communication is a kind of communication when the purpose of communication is sold. And what is our purpose? We are always having one purpose of communication, that whatever we want to inform to another person, that person is able to understand that thing, and your motive to communicate that thing should be fulfilled. Then only then this communication can be effective communication. And when we involve feedback in the communication, then also it, we can call it effective communication. Like if I am teaching you, and I want to inform you about something, or I want to give you some knowledge about this chapter of communication, and then I will ask you that what I taught you, can you explain me that thing? And you are explaining that thing in a proper way, in the same manner in which I want you to understand that thing. So my purpose was that you can able to understand this concept. And if you are giving me the same feedback that you have understood that thing, so my purpose for that communication has been solved. Okay, so effective communication is when I am able to fulfill, or I am able to achieve the purpose which I want to achieve by any means of communication. ठीक है. So if I want कि मेरी communication एक effective communication हो, so there are a lot of factors which can affect my communication. So today we are going to discuss about those essential factors which affect our communication, and which can make our communication a effective communication. Okay, so factors, I will tell you the factors. First of all, the factor, and then I will explain that factor to you. So you have to write down those factors. Okay, just note down the factors one by one, and if you are able to understand, you can explain that factors in your exam also. So note down those factors. लाइक आप लोग पॉइंट्स बना के जैसे लिखते हैं, उन फैक्टर्स को उन पॉइंट्स में लिख लीजिए, और जो आपको समझाया जाए यू कैन कंक्लूड दोज फैक्टर्स बाय दैट अंडरस्टैंडिंग ओनली. ठीक है. सो सबसे पहला जो फैक्टर है विच इफेक्ट आवर कम्युनिकेशन, दैट इज क्लियरिटी. सो हाउ कम्युनिकेशन वर्क? फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो अबाउट दिस थिंग, हाउ कम्युनिकेशन वर्क. कम्युनिकेशन कैसे वर्क करता है? आई एम अ सेंडर. मैं कोई मैसेज आप तक पहुंचाना चाहती, तो आई एम अ सेंडर. ओके, एंड आई एम हैविंग एनी इंफॉर्मेशन और एनी मैसेज, एंड आई वांट टू डिलीवर दैट मैसेज टू द रिसीवर और टू द स्टूडेंट्स. ठीक है. द स्टूडेंट्स इज रिसीवर फॉर मी फॉर दैट पर्पज. ठीक है. सो व्हाट आई विल डू? First of all, I am having a information. Then I compose that information in such a manner that next person can understand. Like मेरे पास मैसेज है, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कम्युनिकेशन क्या होता है. ठीक है. तो पहले तो मेरे पास आ गई मैसेज, देन मैं उस मैसेज को इनकोड करूँगी, मतलब उस मैसेज को इस टाइप से फ्रेम करूँगी कि वो आपको समझ में आ जाए. ठीक है. तो उसके लिए फ्रेमिंग के लिए, लाइक अगर आप लोग ओनली इंग्लिश स्पीकिंग स्टूडेंट्स हो, ठीक है, केवल आपको इंग्लिश समझ में आती है, तो मैं इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ करूँगी और उसी टाइप से वर्ड्स चूज़ करूँगी जिस टाइप के वर्ड्स आपको ईजिली समझ में आ जाएंगे. ठीक है. तो मैंने उसको क्या कर दिया, इनकोड कर दिया ऐसी लैंग्वेज में जो आपको ईजिली समझ में आ जाए.
ठीक है। इनकोड करने के बाद आई विल फाइंड अ चैनल, ठीक है। लाइक राइट नाउ आई एम टीचिंग यू ऑन जूम, ठीक है, and on Zoom you are able to understand me easily, you can hear me properly, so I have decided that I will use the channel of online source and that online source is Zoom, ठीक है। then I will use Zoom class, or if you all are available for me in the offline class also, I will choose the offline mode of communication, face to face communication। so मैंने क्या चूज़ कर लिया, चैनल चूज़ कर लिया जिसके थ्रू मैं आपको वो बात पहुंचाऊंगी, ठीक है। उसके बाद आप रिसीवर हो, आप तक वो मैसेज पहुंच जाएगा और रिसीवर क्या करेगा, उस मैसेज को डिकोड करेगा। मैंने आपको बोला, कोई भी बात बोली, कम्युनिकेशन क्या होता है, आप उस चीज़ को अपने माइंड में इसी अकॉर्डिंग लोगे जिस अकॉर्डिंग आपको समझ में आ सकता है, ठीक है। तो आप उसको क्या करोगे, डिकोड करोगे अपने माइंड के अंदर। सो डिकोडिंग का काम कौन करता है, डिकोडिंग का काम करेगा रिसीवर, ओके। एंड रिसीवर, व्हेन रिसीवर रिसीव द मैसेज, that receiver will decode that message, and after decoding that message you will give me the feedback, okay। so आप फीडबैक दोगे, फीडबैक के लिए भी सेम प्रोसीजर चलेगा, से आप लोग चूज़ करोगे कि मैसेज को आप किस लैंग्वेज में इनकोड करोगे, और इनकोड करने के बाद आप चैनल चूज़ करोगे और मेरे पास भेज दोगे, देन आई विल डिकोड। सो ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसमें सेंडर रिसीवर बन जाता है, रिसीवर सेंडर बन जाता है, और फीडबैक के जुड़ने के बाद ये सर्कल मूव करता रहता है, ठीक है। सो दिस इज द प्रोसेस हाउ वी कैन अंडरस्टैंड द कम्युनिकेशन पार्ट, ठीक है। 1 मिनट रुकिए। So this is the whole process how you can get information. This is the pattern. So इस पैटर्न को, अगर इस पूरी प्रोसेस को अगर हम लोग दूसरे के सामने इफेक्टिव और क्लियर बनाना चाहते हैं तो कुछ पॉइंट्स हैं जिनका ध्यान हमें रखना पड़ेगा, और वो पॉइंट्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट है आपका मैसेज क्लियर होना चाहिए, okay। if I want to communicate something to you, then I should encode the message in a very clear manner, ठीक है। क्लियर मैनर मीन्स मैंने आपको बताया कि आप अगर इंग्लिश स्पीकिंग स्टूडेंट हो तो मैं क्या यूज़ करूँगी, इंग्लिश लैंग्वेज को यूज़ करूँगी आपका मैसेज इनकोड करने के लिए। एंड इफ़ यू ऑल आर हिंदी मीडियम स्टूडेंट देन आई विल यूज़ हिंदी और एनी अदर मीन्स जिससे आपको वो चीज़ समझ में आ जाए, और मैं उसको बिल्कुल क्लियर रखूँगी ताकि आपको वो चीज़ समझ में आ जाए। तो मेरा मैसेज कैसा होना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट शुड बी क्लियर, टोटली क्लियर। जो आप इंफॉर्मेशन दूसरे तक पहुंचाना चाहते हो, दैट इंफॉर्मेशन शुड बी क्लियर, ओनली देन दैट पर्सन कैन अंडरस्टैंड यू ईजिली, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट हो गया, क्लियर होने चाहिए आपके जो भी आइडियाज़ हैं, जो भी फैक्ट्स हैं जो आप मैसेज में इन्वॉल्व करना चाहते हो, दोज फैक्ट्स और आइडियाज शुड बी वेरी क्लियर। दे शुड नॉट बी लाइक आप बात करना चाहते हो मैं जा रहा हूँ और आप यूज़ करो जा रहा हूँ मैं, मतलब आप उसको ऐसे घुमाओ मत, उसको टोटली क्लियर रखो, ठीक है। क्लियर रखोगे तो आपका मैसेज ईजिली दूसरे को समझ में आ जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या होना चाहिए, कंप्लीटनेस होनी चाहिए। कंप्लीटनेस पहली होनी चाहिए क्लियरिटी मैसेज में, दूसरी मैसेज में कंप्लीटनेस होनी चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय कंप्लीटनेस, कंप्लीटनेस मीन्स वो मैसेज कंप्लीट होना चाहिए, मीन्स छोटी सी बात बता के आप उसको छोड़ नहीं सकते, आपको जो पूरी इन्फॉर्मेशन देनी है। लाइक अगर मैं आपको बताऊं कम्युनिकेशन क्या होता है, मैं बोल दूं कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज, ठीक है। यहाँ तक का क्लियर था, मैंने क्लियर बताया आपको कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज, बट ये कंप्लीट नहीं है। अगर कंप्लीट नहीं है तो आपको तो समझ में नहीं आएगा मैं आगे कहना क्या चाहती हूँ, कम्युनिकेशन है क्या, ठीक है। तो योर मैसेज शुड बी कंप्लीट, उसमें कंप्लीटनेस होनी चाहिए, ओनली देन नेक्स्ट पर्सन कैन अंडरस्टैंड यू प्रॉपरली, ठीक है। उसके बाद उसमें क्या होना चाहिए, उसमें होनी चाहिए एक कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जो दूसरे का अटेंशन आपके ऊपर लगा, लाइक एम्फेसिस ऑफ अटेंशन।
मीन्स उसमें इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो दूसरे का अटेंशन उस बात में लगा सके। लाइक कई बार क्या होता है, इतना बोरिंग रूप से कई पर्सन्स अपनी बात को प्रेजेंट करते हैं, यू डोंट वांट टू लिसन दैट थिंग। इवन दैट पर्सन कैन यूज लाइक कुछ भी यूज़ कर ले, बट आपको अगर वो बोरिंग लगेगी, वो आपकी अटेंशन ग्रैब नहीं कर सकता, तो आपको वो चीज़ सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। सो देयर द मैसेज शुड बी लाइक दिस कि वो आपकी अटेंशन ले। अगर मैं जो बात बोल रही हूँ यही बहुत स्लो बोलूँ कि आप सुन भी ना पाओ, ठीक है, तो क्या होगा, आप लोगों की अटेंशन मेरी तरफ रहेगी नहीं, और जब आपकी अटेंशन ही नहीं रहेगी तो वो मैसेज मैं आप तक पहुंचा ही नहीं पाऊंगी, और वो मैसेज क्या हो गया, मेरा जो पर्पस था वो तो सोल ही नहीं हुआ, अगर वो मैसेज ऐसा नहीं हुआ जिससे मैं अटेंशन दूसरे की ग्रैब कर सकूं। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या हो गया, उसमें क्या होना चाहिए, एम्फेसिस होना चाहिए, इतनी पावर होनी चाहिए कि वो दूसरे की अटेंशन ग्रैब कर सके। ठीक है, उसके बाद क्या, हम लोगों ने 3 पॉइंट्स किए। फोर्थ पॉइंट क्या हो गया, उसमें कंसेंस टोटली क्लियर एंड इम्पॉर्टेंट होना चाहिए नेक्स्ट पर्सन के लिए। अगर वो क्लियर और इम्पॉर्टेंट होगा तभी दूसरा पर्सन सुनना चाहेगा। मैं आपको कोई भी बात बताने लग जाऊं जो आपके टॉपिक में नहीं है, जो आपसे रिलेटेड नहीं है, सो यू विल नॉट अंडरस्टैंड मी, यू विल नॉट लिसन मी। ठीक है, सो क्लियर एंड इम्पॉर्टेंट होनी चाहिए। अगर वो इम्पॉर्टेंट होगी आपके लिए तभी आप उस बात को सुनना पसंद करोगे। अगर मैं अभी आपको बताऊं दैट देयर इज़ अ हॉलीडे टुमारो, देन यू विल लिसन मी वेरी अटेंटिवली, बिकॉज ये आपका इंटरेस्ट का फैक्टर है। ठीक है, और मैं कुछ भी आपको बताने लग जाऊं कि आज कॉलेज में ये हुआ और उसमें आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो क्या होगा, आप उस मैसेज को नहीं सुनोगे। सो हमें ऐसा ही मैसेज चूज़ करना चाहिए जो नेक्स्ट पर्सन के लिए इम्पॉर्टेंट भी हो और वो टोटली क्लियर भी हो। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। उससे नेक्स्ट क्या है, इंटीग्रेशन होनी चाहिए, मतलब ऐसा मैसेज होना चाहिए जो आपस में बंधा हुआ हो, मीन्स टोटली आपस में कनेक्टेड हो। द मैसेज शुड बी कनेक्टेड। If we use shattered form of a message, then next person is not able to understand. First I am using what is communication, then I will go on how कुछ भी I will talk what is economics, what is the meaning of economics, then I will go to maths and then किसी और सब्जेक्ट पे चले जाऊँ, तो क्या हो गया, आपस में रिलेटेड तो नहीं है। अगर आपस में रिलेटेड ही नहीं है तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, और कंफ्यूज हो गए तो आपको वो क्लियरली बात समझ में नहीं आएगी। तो उसमें एक इंटीग्रिटी होनी चाहिए, मतलब वो आपस में लिंक होना चाहिए। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, अगर हम लोग कम्युनिकेशन अगर इफेक्टिव चाहते हैं और अच्छा कम्युनिकेशन चाहते हैं तो वो 2 वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। 2 वे कम्युनिकेशन एंड 1 वे कम्युनिकेशन क्या होता है, 1 वे कम्युनिकेशन क्या होता है, आई एम टॉकिंग, यू आर लिसनिंग ओनली। ठीक है, तो आई डोंट नो कि आपको वो चीज़ समझ में आ रही है नहीं आ रही है, दिस इज़ रियलिटी। पता नहीं आपको समझ में आ रही है नहीं आ रही है, क्योंकि कोई रिप्लाई नहीं कर रहा हाँ ना का। तो अगर मैं कुछ बता रही हूँ और केवल मैं बता रही हूँ, किसी की सुन नहीं रही हूँ, आपसे रिप्लाई नहीं मांग रही हूँ, तो उसे 1 वे कम्युनिकेशन कहते हैं। 2 वे कम्युनिकेशन क्या होता है, इफ़ आई एम टीचिंग यू समथिंग एंड आई एम आस्किंग कि आपको ये बात समझ में आई, एक्सप्लेन करो मुझे कि समझ में आई नहीं आई, तो आप लोग मुझे रिप्लाई कर रहे हो कि हाँ मुझे ये समझ में आया इससे रिलेटेड, तो क्या हो गया, वो 2 वे कम्युनिकेशन होगी। मतलब मैं बता भी रही हूँ और आपसे पूछ भी रही हूँ कि आपको क्या वो बात समझ में आई, क्या नहीं समझ में आया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये काइंड का 2 वे कम्युनिकेशन हो गया। तो जो भी सारे कम्युनिकेशन, कोई भी कम्युनिकेशन कब इफेक्टिव और गुड कम्युनिकेशन बन जाता है, जब आप उसको 2 वे कम्युनिकेशन बनाते हो। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, इफ आई वॉन्ट, यहाँ तक के पॉइंट्स क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, टू नो रिसीवर। अगर आप कोई मैसेज किसी को देना चाहते हो एंड यू डोंट नो अबाउट द रिसीवर and you don't know how the receiver can able to understand you properly, then you are not able to encode that message in a proper way. Okay, you all are students, and if I am not aware about your age and if I am not able to understand कि
how you are able to understand this thing. So I am not able to encode that thing in a proper way. Like अगर आप मुझसे ज़्यादा connected हो, मैं आपको डेली में जानती हूँ, तो क्या होगा, मैं उसको इस टाइप से कर पाऊँगी इनकोड जो आपको ईजिली समझ में आ जाए. अब आप सब लोग मेरे लिए न्यू हो, आई डोंट नो कि कौन किस टाइप से समझता है, किस टाइप से नहीं समझता. तो मेरे को कन्फ्यूज़न रहती है कि मैं टोटली इंग्लिश यूज़ करूँ, टोटली हिंदी यूज़ करूँ, जिससे आपको पूरी बात अच्छे से समझ में आ जाए. सो मेरा जो इनकोडिंग है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा इफ़ आई डोंट नो अबाउट द रिसीवर. If I am totally very much aware about the receiver, then I am able to encode that thing in a proper way and in such a way that you all can able to understand that thing in totally such a manner that that thing can be clear to you. ठीक है. उसके बाद क्या होगा, उसके बाद का नेक्स्ट फैक्टर है that is time. Your message should be clear, specific and short. शॉर्ट सिंपल. आप लोगों ने सुना होगा कोई भी बात बोलो तो शॉर्ट एंड सिंपल बोलो तो हमें समझ में आ जाएगी. सो टाइम आपको इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए कोई भी बात करने के लिए. तो आपको टाइम का ध्यान रखना चाहिए, कितने टाइम में आप वो बात दूसरे तक पहुंचाना चाहते हो. इफ़ यू टेक दैट थिंग वेरी लॉन्ग, then next person will be bored about that thing and वो थोड़ी देर के बाद सुनना बंद कर देगा. तो आप जो भी पढ़ाएं, जो भी बता रहे हैं किसी को, दैट शुड बी शॉर्ट, टाइम के अकॉर्डिंग होना चाहिए. अगर आप उसको ज़्यादा लॉन्ग कर दोगे या ज़्यादा ही शॉर्ट कर दोगे तो आप अपनी बात को प्रॉपर नहीं कह पाओगे. ठीक है. शॉर्ट एंड प्रिसाइज होना चाहिए. जितना कहना उतना ही, जितना आप उसको समझाना चाहते हो उतना ही इन्वॉल्व करो, उससे ज़्यादा उसके अंदर ज़्यादा मत इन्वॉल्व करो, अदरवाइज़ वो बोरिंग हो जाएगा और नेक्स्ट पर्सन उसको अच्छे से नहीं समझ पाएगा. ठीक है. सिंपलिसिटी होनी चाहिए. आप जो भी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो, जो भी जैसे भी दूसरे को समझाना चाह रहे हो, वो बिल्कुल सिंपल होना चाहिए जिससे वो पर्सन ईजिली समझ पाए. अगर आप उसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दोगे तो नेक्स्ट पर्सन को वो बात समझ में नहीं आएगी और आपका जो पर्पस है उस चीज़ को बोलने का वो सॉल्व नहीं हो पाएगा. तो उसमें सिंपलिसिटी होनी चाहिए. ठीक है. ये कुछ फैक्टर्स हैं जो आपके कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव बनाने में हेल्प करते हैं. तो ये इन फैक्टर्स का आपको पता होना चाहिए. दीज फैक्टर्स विल हेल्प यू एंड क्वेश्चन कैन कम लाइक कि डिफाइन कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन को डिफाइन करो एंड व्हाट डिफाइन लाइक इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड डिफाइन द फैक्टर्स को डिफाइन करो जो गुड कम्युनिकेशन के लिए असेंशियल हैं. दीज आर द फैक्टर्स जो आज हमने डिस्कस किए हैं गुड कम्युनिकेशन के लिए. ये फैक्टर्स हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है. ठीक है. सो अगर क्वेश्चन आए कि कम्युनिकेशन को डिफाइन करो एंड डिफाइन द फैक्टर्स विच इफेक्ट गुड कम्युनिकेशन या असेंशियल थिंग्स फॉर गुड कम्युनिकेशन, दोनों में से किसी भी टाइप में आएगा तो उसका आंसर यही रहेगा. ठीक है. यहाँ तक ये समझ में आया? यस मैम. किसी को इसमें कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ. हाँ जी, कोई प्रॉब्लम है? हम लोग एक छोटी सी बात को और डिस्कस करेंगे, उसको ज़्यादा हम लोग कल डिस्कस करेंगे. मैं जस्ट आपको उसका इंट्रोडक्शन दे देती हूँ. कम्युनिकेशन दो टाइप से हो सकती हैं. टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन डिस्कस करेंगे हम लोग. दैट कैन बी वर्बल एंड नॉन वर्बल. ठीक है. पैरा वर्बल भी होता है, वर्बल, नॉन वर्बल एंड पैरा वर्बल. ठीक है. तो वर्बल एंड नॉन वर्बल को हम लोग आज थोड़ा बहुत मैं आपको बताऊंगी, उसको क्लियरली और फुल पॉइंट्स के साथ हम लोग कल करेंगे. सो व्हाट इज़ वर्बल कम्युनिकेशन एंड व्हाट इज़ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. वर्बल कम्युनिकेशन, जिस कम्युनिकेशन के अंदर हम लोग वर्ड्स का एंड सिंबल्स का यूज़ करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? वर्बल कम्युनिकेशन. एवरी कम्युनिकेशन इन विच वी यूज़ एनी लैंग्वेज, इट कैन बी रिटन, इट कैन बी ऑरल हो या रिटन हो, बट अगर हम वर्ड्स का और सिंबल्स का यूज़ कर रहे हैं, उसमें सिंबल्स साइंस, मतलब वर्ड्स ही सिंबल्स और साइंस होते हैं, अगर इनका यूज़ कर रहे हैं तो वो क्या होगी? वर्बल कम्युनिकेशन होगी. वो ऑरल भी हो सकती है और रिटन भी हो सकती है. रिटन एंड ऑरल बोथ कम्युनिकेशन कम अंडर verbal communication.
जहाँ पर हम लोग वर्ड्स का यूज़ करेंगे, वो होगी वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होगी, जहाँ पर हम वर्ड्स का यूज़ नहीं करेंगे, ओनली हम सिंबल्स का यूज़ करेंगे, सिंबल्स या सिग्नल्स का यूज़ करेंगे। लाइक आपकी जो ट्रैफिक लाइट है उसमें कुछ भी वर्बली नहीं होता, उसमें बस आपको सिग्नल्स दे रखे होते हैं। अगर ग्रीन है तो आप मूव करोगे, अगर रेड है तो आपको रुकना है, ऑरेंज है तो आपको अब रुकने वाली है आपकी ट्रैफिक लाइट। सो दीज आर ओनली सिग्नल्स, और उन सिग्नल्स के थ्रू आपको क्या समझ में आ रहा है, वो चीज़ समझ में आ रही है जो वो कम्युनिकेट करना चाह रहा है, बट इसमें कोई भी वर्ड का यूज़ नहीं हो रहा। जब वर्ड का यूज़ नहीं हो रहा तो वहाँ पर क्या होता है, वो होगी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो वर्बल कम्युनिकेशन इन विच वी यूज़ वर्ड्स एंड साइंस, बट जहाँ पे सिम्बल्स का या मेरे फेस एक्सप्रेशन का या मेरे मूवमेंट्स से कुछ बात समझ रहे हो, लाइक क्या होता है, मेरी बॉडी लैंग्वेज से अगर आप ये समझ रहे हो कि मैं गुस्सा हूँ या ठीक हूँ, तो वो क्या होगा, एक काइंड का नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो गया, क्योंकि वहाँ पर मैंने आपको कुछ बोल के नहीं बताया है, आपने वो केवल मेरे जो भी मैं सिग्नल्स दे रही हूँ उनके थ्रू समझा है। तो क्या हो गया, वो एक काइंड का नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो गया। तो वर्बल कम्युनिकेशन क्या हो गया, वर्बल कम्युनिकेशन जिसमें हम वर्ड्स का यूज़ करते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जिसमें केवल सिंबल्स या साइन सिग्नल्स इनका यूज़ किया जाता है, जिसमें वर्ड्स का यूज़ नहीं होता। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई है? यस मैम। तो आपका क्या होमवर्क रहेगा, आपको रीड करना है, नेट से मिल जाएगा ईजिली। जो मैंने आपको बताई हैं वो पॉइंट्स आपने नोट डाउन करे हैं, उनको एक बार दोबारा रीड कर लेना। एंड सेकेंडली वर्बल